Thank you. Most welcome, all of you, and I hope you all are better and working hard to ensure good marks in the examination. Today, I am going to teach you all from 10 plus 2 level, that is Flamingo. Already, you have been given two books. First one is Flamingo, and next one is about Vistas. I hope you all have studied and you are very eager to learn each and one chapter which has been prescribed by Government of Jharkhand by Jack Ranchi. And certainly, if you undergo each and one subject, certainly you are going to ensure good marks in the exam. Today, I am going to present you all in better way poem. One poem which is very interesting one. And from Flamingo, poem number 1. This is the first poem. If you undergo the subject matter, you will enjoy the poem in poetic ways. And the name of the poem is nothing but My Mother at 66. My Mother at 66. This is an interesting poem in which we will learn about a good relationship between a daughter and a mother. And this poem has been composed by Kamala Das. Well, at first, before introducing this interesting poem, we should know about the poet. Kamala Das belongs to Kerala. हिंदी में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आज मैं आपके लिए फ्लैमिंगो जो कि 10 प्लस 2 इंग्लिश आपके लिए दिया गया है उससे माई मदर एट 66 एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन फर्स्ट पोएम। ये आपके फ्लैमिंगो में पहला जो कविता है पोएम है उसे लिया गया माई मदर एट 66। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मेरी माँ एट 66 तो कितने वर्ष की है, 66 वर्ष की है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ बनता है। इफ यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करेगा कि हाउ व्हाट इज द एज ऑफ हर मदर, तो 66। इसकी जो माँ है उसकी उम्र जो है वो आपका 66 ईयर्स है। सपोज दिस इज द मदर एंड whose age is 66 years. It means her mother, Kamala Das mother is 66 years old. यानी इनकी जो माँ है कमला दास की वो 66 वर्ष की है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है। नेक्स्ट जाएंगे, कमला दास बिलोंग्स टू केरला। ऑलरेडी यू नो दोट केरला इज अ साउथ इंडियन स्टेट। केरल में जन्म हुआ कि दक्षिण भारत का एक राज्य भी है। वी ऑल्सो दिस इज मालाबार कोस्ट, मालाबार। अब ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, मालाबार कोंकण तटीय क्षेत्र पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे मालाबार इसको बोलता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आपका 1934 टू 2009। शी इज नो मोर विथ यस। कमला दास हमारे बीच में अब नहीं है। इट मीन्स 1934 टू 2009 इज हर लाइफ जर्नी। इनकी जीवन यात्रा जो 1934 से 2009 के बीच में है। एंड कमला दास इज नोन फॉर हिज पोइटिक वर्क एज वेल एज ह्यूमन रिलेशनशिप्स एज वेल एज ह्यूमन टच। दक्षिण भारत में कमला दास को एक बहुत ही बेहतरीन कवित्रियों में माना जाता है जिन्होंने अपने मानवीय तथ्यों को रखते हुए, यथार्थ को रखते हुए कई कविताओं को इन्होंने लिखा है। इसलिए शी इज अ वेल नोन साउथ इंडियन पोएट of India who was born in Kerala, that is Malabar, in 1934 and she passed away in the year 2009. यहाँ तक हम लोग एक समझ चुके हैं। अब now I would like to introduce about the poem. What is the poem? What is the base of poem and what is the view of poem, etc. etc. Now may I rub this. अब यहाँ तक हम लोग एक समरी बना लेते हैं इंग्लिश में ही कि My Mother at 66 is an interesting poem which has been composed by Kamala Das. She belongs to Kerala and belongs to Malabar, as well as she was born in the year 1934 and she passed away in the year 2009. In this poem, we are ready to learn about the best relationship between a mother and a daughter in this poem. Please wait and watch next. Okay, may I rub this now?
Next, I am going to introduce about the poem. This is the title already know, My Mother at 66. You have to revise and you have to recall again and again so that you can remember for a longer time. आपको बार बार माई मदर एट 66, दिस इज नॉट अ टफ टाइटल. जो टाइटल है वो टफ नहीं है. तो देखते हैं कि इसमें 66 ईयर्स, थोड़ा सा वी हैव टू इमेजिन कि द मदर इज इन ओल्ड एज. थोड़ा सा आप कल्पना करें कि जो इनकी माँ है वो ओल्ड एज में है. अभी आपको एक फिगर के माध्यम से मैंने बनाने का प्रयास किया था कि सपोज दिस इज द मदर एंड शी इज इन द ओल्ड एज, दैट इज दिस इज मदर. नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोएट. सपोज दिस इज पोएट, दिस इज कमला दास. Suppose this is Kamala Das and this is her mother, that is 66 years old. Now I would like to highlight each and one stanza of the poem. And first stanza is driving from my parents' home to Cochin airport last Friday. It has been mentioned in your poem. If you refer your book, certainly you will get this poem. देखेंगे कि यह जो पोएट है कमला दास की हम लोग बात करेंगे. दिस इज माई पेरेंट्स होम, दिस इज पेरेंट्स होम, यानी आप लोग समझते हैं कि अपनी माँ का घर. हम लोग अपने आसपास में समझते हैं, इसको नहर के रूप में समझा जाता है कि दिस इज मदर हाउस. एंड सपोज दिस इज इन केरला, दिस इज हर हाउस. हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए किया जाएगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं. एंड शी इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम योर हाउस टू कोचिन एयरपोर्ट एंड बोथ आर गोइंग, दिस इज द वे. एंड शी, वेयर इज शी गोइंग? शी इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट. दिस इज कोचिन एयरपोर्ट. And where is Cochin Airport? Cochin Airport is in Kerala. देखेंगे तो ये आपका कोचिन एयरपोर्ट है, यहाँ पे स्टॉपेज होगा. इसके बाद क्या है, ये आपका एरोप्लेन होगा. यहाँ से हम लोग सपोज दिस इज एन एरोप्लेन, यहाँ पे है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि माई मदर एट 66 इन दिस पोएम शी इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे. दिन क्या है, फ्राइडे. इन दिस पोएम दिस इज कमला दास. सपोज दिस इज कमला दास and she is driving from parents home to Cochin airport last Friday. यानी यहाँ से अपने माँ के घर से निकलकर ये कोचिन एयरपोर्ट जा रही है. नाउ शी हैज़ टू लीव फॉर एनी कंट्री और एनी अदर प्लेसेस, कि नहीं एनी जगह पर उन्हें जाना है. सपोज दिस इज अ व्हीकल और कार. एक समझ लेते हैं कि ये कार गाड़ी है जो कि उसके होके अपना से जाती है, जा रही है. सपोज दिस इज कमला दास, दिस इज मदर. एक गाड़ी के माध्यम से वो अपना कोचिन एयरपोर्ट जा रही है. एंड हर मदर हुज एज इज 66 ईयर्स ओल्ड हु इज ऑल्सो सीटिंग बिसाइड हर. ये गाड़ी है, सपोज हम लोग एक गाड़ी बना लिए हैं. इनमें क्या है, उनको छोड़ने के लिए कोचिन एयरपोर्ट जो जा रही है कमला दास, इनको छोड़ने के लिए उसकी मम्मी भी जाती है. दिस इज द मदरहुड. This is the relationship which has been described in this poem about a mother and about a daughter. This is mother, this is daughter. There is a very good relationship between a mother and a daughter. The theme of the poem is nothing but the relationship between a mother and a daughter, which lasts for longer time. That is immortal relationship has been described in this poem.
देखेंगे इस कविता के माध्यम से पोएम के किस प्रकार से माँ अपने डॉटर के प्रति स्नेहिल और किस प्रकार से एकदम पूरा सोचती है अपनी बेटी के बारे में, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में भी होती है। कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे, यानी कि अपनी माँ के पीछे में उसकी पीछे बैठी हुई, बिसाइड उसके बगल में बैठी हुई है और कोचिन एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही है, जबकि 66 वर्ष की अवस्था में है। कोई जबकि जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये अपनी माँ अपनी बेटी यानी कमला दास को छोड़ने के लिए कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। शी वॉज गोइंग जस्ट लाइक ए कॉमन डे, यहाँ से घर से निकल चुकी है कॉमन डे। शी इज़ माई मदर, आई एम गोइंग टू एनीवेयर एंड शी इज़ गोइंग टू लिव में। अंग्रेजी में हम लोग सी ऑफ, यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग सी ऑफ बोलते हैं, किसी को विदा करना तो किसी को गंतव्य के लिए रवाना करना, छोड़ना। तो इन दिस पोएम यहाँ से निकल चुके हैं दोनों। सपोज आगे बहुत अच्छा है, लाइक द सेम डे, कोई फर्क नहीं, पहले की तरह, यू आर माई मदर, आई एम योर डॉटर एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक एवरी डेज एज यूजुअल, देयर इज नो डिफरेंस, दैट्स वाई शी वॉज गोइंग। व्हेन शी रीच्ड टू द नेक्स्ट प्लेसेस he saw beside, and this has been mentioned in this poem। इस कविता में इसका वर्णन बहुत ही व्याख्या किया गया है। She when passed some points or some distances, she looked behind, she found her mother doze। क्या है कि वो जैसे ही आगे बढ़ती है गाड़ी में थोड़ा सा झुक के देखती है, पीछे की ओर देखती है। आप एहसास करें, क्योंकि पोएम जो होता है वो हाई इमेजिनेशन होता है, उच्च कल्पना शक्ति से बना होता है। आप इसको सिर्फ एक स्टोरी के रूप में नहीं ले सकते हैं। जब वो अपने पीछे देखती है, सी फाउंड हर माउथ ओपन्ड, मदर्स माउथ वाज ओपन, डोज आसन, जस्ट लाइक। क्या है, जैसे ही वो यहाँ पे स्टोरी है, हल्का सा होल्ड हम लोग करेंगे स्टोरी पे, तुरंत क्या है उसकी अपनी माँ को देखती है तो उसको लगा कि दिस इज माई मदर हु मिल्क मी व्हेन आई वाज ए बेबी एंड नाउ आई एम एट दिस एज एंड दिस इज माई मदर हु इज अबाउट टू डाई। उनको लगता है यहाँ पे उसको दिखाता ममत्व के बारे में, मदरहुड, माँ के बारे में दिखाता है कि यही मेरी माँ है, दिस इज माई मदर, मेरी माँ है जिन्होंने बच्चे में मेरा लालन पालन किया, लेकिन आज उम्र कितना है, 66 वर्ष की अवस्था में है। हर फेस इज आसन, चेहरा क्या है, झुर्री बना हुआ। हम लोग थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं, झुर्री बना हुआ। जैसे देखेंगे आप, हमारा जो स्किन होता है, यदि आपका उम्र ज़्यादा हो जाए तो स्किन क्या है, आपका ग्लेजिंग नहीं रह जाता है, जिसको कहते हैं पेल। हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, पेल, फेस इज पेल, उसका सा पीला पीला सा है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और आसन लगेगा जैसे मृत शरीर के जैसा है, और आपका पेल, आसन, इस प्रकार से देखती है तो उसको लगता है कि दिस इज माई मदर हु इज अबाउट टू डाई नाउ, who will be no more with us or me, that's why she lost in her mother days। इसलिए लेखिका जो गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन लेखिका अपनी माँ के ज़माने में, चाहे गुजरे हुए पल में खो जाती है। she was lost in her childhood days, अपनी बचपना का याद करती है और उसको लगता है कि this is my mother, ये मेरी माँ है। उनको विश्वास भी होता है, नहीं भी होता है, क्योंकि अभी तक उसके माइंड में ये नहीं आया था कि मेरी माँ का उम्र इतना ज़्यादा हो चुका है। इफ़ यू लिव टुगेदर यू वॉन्ट फील सच टाइप ऑफ फीलिंग्स इन योर लाइफ। यदि देखेंगे बच्चे के साथ माँ इन लोग रहते हैं तो कभी आपको फीलिंग ऐसा नहीं आता, लेकिन आज वो क्या है, सी वॉज लॉस्ट इन हर चाइल्डहुड डेज। लेखिका तब तक सोच रही है, खो जाती है अपने यादों में। आगे में क्या है, फिर यहाँ से गाड़ी मूव करती है, वो आगे की ओर, सी लुक्ड फॉरवर्ड, वो आगे की ओर देखती है। जैसे ही उसको देखी, दिस आर ट्रीज, उन्होंने देखा पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के सब पेड़ पौधे हैं, जंगल। अब जब रास्ते में जाएंगे तो आपको दोनों साइड से मिलता है, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे हम लोग स्प्रिंटिंग कहेंगे, स्प्रिंटिंग। आप यदि कोई यात्रा कर रहे हैं, यदि आप पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ पौधे घूम रहे हैं। यदि आप आगे की ओर चल रहे हैं, यदि आप पीछे देखने का प्रयास करें तो लगेगा सड़क चली जा रही है अथवा पेड़ पौधे तेज गति से घूम रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स रोटेशन, तेज मूवमेंट, तेज गति से घूमना।
तो यहाँ पर जैसे देखिए पेड़ पौधे गतिमान है, यानी लाइफ इज गोइंग ऑन, जीवन जो है सो चल रहा है, क्योंकि ये अपने यादों में खो चुकी थी। अब लेकिन क्या है, अपने याद को ताज़ा कर लेती है। कुछ बच्चों को इन्होंने देखा जो कि इंजॉय करते हुए इधर उधर जा रहा है, सम बॉयज चिल्ड्रेन जो इंजॉय कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या है, वो सीधे यहाँ पर पहुँच जाती है चेक पोस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट। यदि आप कहीं एरोप्लेन के पास जा रहे हैं कहीं, तो सबसे पहले आपका क्या स्क्रीनिंग चेक किया जाता है सिक्योरिटी के हिसाब से। गाड़ी यहाँ से इधर आपका जा नहीं सकती है, तो फोर्स क्या यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन इसकी क्या है, ये गम की दुनिया में खो चुकी है। लेखिका जो कुछ देरी पहले हैप्पी मूड में थी, अभी क्या है, सैड मूड में है बहुत हद तक, क्योंकि अपनी माँ के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे चेकअप किया गया, उसका जो भी जांच है, यहाँ से क्या उतरने के बाद सीधे अब एरोप्लेन के लिए जाना है जो कि कहीं जा रही है। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको होल्ड होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जांच पड़ताल क्या चली गई, लेकिन अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर, ताकि यह पता ना चले माई मदर को कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यानी डॉटर अपना फर्ज निभाती है कि शी डिड नॉट want to show her sadness in her face, that's why she brought a smile in her face। अपने चेहरे पे क्या है, एक मुस्कान लेकर आती है, बहुत अच्छा स्माइल लेके आती है लेखिका। लेखिका जो है सो बहुत स्माइल लेके आती है, ताकि हमारी माँ को ये फीलिंग ना हो कि आई एम अलोन एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज योर एज इज अबाउट 66 years old and you are in old age। That's why she did not want to express her feelings about mother। अपनी माँ की जो लेखिका है वो कभी यह बताना नहीं चाहती कि जो है सो हम आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए क्या है, लास्ट वर्ड जो है, सी स्माइल एंड स्माइल, सी यू अम्मा सुन अगेन। देखेंगे लास्ट में क्या है, अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है और हंस लेती है, थोड़ा सा और मुस्कुराती है, और हमारे यहाँ क्या होता है, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन अम्मा, सी यू सुन अम्मा अगेन। देखेंगे यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसकी माँ यहीं तक है, याद रखेंगे, यहाँ से इधर क्रॉस नहीं कर सकती है। इसलिए टाटा बाय बाय क्यों, मुस्कान लाते हुए, चेहरे पर अपना ग्लेजिंग लाते हुए, स्माइल चार्मिंग लाते हुए बोलती है सी यू अम्मा सुन अगेन, थैंक यू, बेस्ट विशेज, और फिर अपने गंतव्य की ओर मूव कर जाती है। तो एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं वंस अगेन। My mother at 66 is an interesting poem. This has been composed by Kamala Das, who belongs to Kerala, Malabar, and she was born in the year 1934 and she passed away in the year 2009. In this poem, we are learning about motherhood. इस पोएम में हम सभी ममत्व के बारे में, motherhood, that is relationship between a mother and a daughter, that is best relationship। देखेंगे कई कविता, कई पोएम लिखे गए हैं जिसमें माँ और पुत्री कि एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप को दिखाया गया है, उसका हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक माँ की उम्र 66 वर्ष हो जाती है, लेकिन अभी तक उसको फीलिंग नहीं हुआ था। नेक्स्ट में क्या है, जब वो कोचिन छोड़ने जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट, तो उसको एक फीलिंग हुआ कि दिस इज़ माई मदर। वो अपनी माँ को याद करती है, बचपना का दिन याद करती है, बिकॉज ये मदर always thinks about a daughter and daughter is always thinks about a mother। this is humanity। तो यहाँ देखेंगे अगला, मदरहुड साथ में ह्यूमैनिटी, मानवता की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारी इंडियन कल्चर में माँ, पुत्री और एन के बाद में बहुत अच्छा एक व्याख्या किया गया है। तो इन दिस पोएम में भी प्रयास किया गया है कि हम उसको हाईलाइट करें। और कोचिन एयरपोर्ट चली भी जाती है तो माँ को यह फीलिंग नहीं देती है, शी डिड नॉट वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ फीलिंग अबाउट द सैडनेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज शी वांटेड टू ब्रिंग हैप्पीनेस, शी ऑलवेज वांट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन हर मदर्स फेस। वो चाहते कि जो माँ हमारा जिस अवस्था में है बरकरार रहे, बना रहे, और हमें इन्हें एक खुशी देते हुए, अथवा को पता ही ना चले कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है, फिर मुस्कान लाती है और मुस्कुराती है और कहती है बहुत जल्द आपसे भेंट होगी, फिर मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब लाइन बाय लाइन, दैट इज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66। इन दिस वे वी विल लर्न in detail my mother at 66।
That is, we are learning about Kamala Das. This is an interesting poem in which motherhood, humanity, fraternity has been described. How your daughter thinks about your mother. It will be better to go for line by line explanation from your book. This has been prescribed by Government of Jharkhand, Jharkhand Academic Council, Ranchi. That's why, suppose this is Kamala Das. Sorry, this is mother. This is mother. And whose age is about 66 years old. Already you know. एक माँ है जिसकी उम्र 66 वर्ष की है. And this is Kamala Das. This is Kamala Das. And she is the daughter. That's why this is a good relationship between a daughter and a mother, vice versa. In this poem, now we should go for line by line explanation for better understanding. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. पिछले शुक्रवार को अपने माँ के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे. मॉर्निंग. आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी माँ को अपने बगल में पाया अथवा देखा. डोज, जो क्या है, ऊँधना. देखेंगे जब ज़्यादा उम्र हो जाता है तो लोग सांस भी लेते हैं तो ऊँध कर लेते हैं. एक विशेष प्रकार के आवाज़ के साथ उठना बैठना और सांस लेना होता है. थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि आप जब उम्र ज़्यादा हो किसी का तो कैसा बिहेव करते हैं. ओपन माउथड, उसके जो जब देखी अपनी माँ को तो उसके मुंह खुले हुए थे. ओपन माउथ, सांस, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफें होती है. हर फेस आसन, उसकी चेहरे पर क्या है, कोई ग्लेजिंग नहीं है, कोई चमक नहीं है, छाई की तरह है. आसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और ऐसा लग रहा था मानो एक शव है, एक मरा हुआ शरीर है. ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, कॉर्प्स, लगभग स्थिर शरीर है, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से शरीर का जो एक्टिविटी, जो चमक होती है, वो आपका लॉस्ट हो चुका होता है. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. देन तो इस तरह से आज पहली बार उन्होंने एहसास किया है कि यही मेरी माँ है जो अब बूढ़ी हो चुकी है और एक मरने की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि इनके चेहरे पे कोई ग्लेजिंग नहीं है और विभिन्न प्रकार का जो एक्टिविटी होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है. पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. आपको समरी में मैंने बताने का प्रयास किया था. अंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब उन्होंने आगे की ओर देखा, पुनः अपनी माँ की दुनिया से निकलकर, आदो की दुनिया से, बचपना की दुनिया से, मदरहुड यानी ममत्व की दुनिया से निकलकर जब आगे की ओर देखती है तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने घूमते हुए पेड़ पौधों को देखी. द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आनंद लेते हुए इधर से उधर गतिमान हैं. आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बाहर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, देखेंगे लेकिन जब पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया गया. स्टैंडिंग या फ्यू आर्ट्स, यानी कुछ दूरी पर रहकर. सपोज कीजिए कि ये एरोप्लेन है आपका और यहाँ पे क्या है, आपका सिक्योरिटी के लिए चेक किया जाता है, आप लोग सब जानते भी हैं. सपोज हम लोग इसी तरह से सब कल्पना कर लेते हैं, हम लोग एक कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे, और लेखिका को इसमें सवार होना है. अब क्या है, दिस इज एरोप्लेन, यहाँ पे कुछ दूरी पर खड़ा होके रुक जाती है. अगले में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस प्रकार से अगला व्याख्या किया गया है एंड व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट लेसन. फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द पोएम फ्रॉम फ्लैमिंगो, माय मदर एट 66. नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड. अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल. ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो कमला दास है वो अपनी माँ को फिर से वो देखती है. दिस इज कमला दास ऑलरेडी. सपोज दिस इज कमला दास एंड शी लुक्ड हर मदर हु इज एट द एज ऑफ 66. बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज आपकी परीक्षाएं जो पूछी जाती है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं. तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि आप उसी एंगल से पढ़ाई करें ताकि ये पता चले कि
सब ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ हो जाए। तो देखेंगे कमला दास जो है वो अपनी माँ के बारे में बता रही है। लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। वेन पेल मीन्स चेहरा क्या है, पिल्ला है, धसा हुआ चेहरा है, चेहरे में चमक नहीं है। एज लेट विंटर्स मून, और उस तरह से है कि जिसे पछुआ जो चांद होती है जिसमें चमक नहीं होता है। आप देखेंगे कि चांद जो हमारी होती है, जो पहले होता है उसमें बहुत चमक होता है, साइन होता है, लेकिन जो बाद में होता है जिसको पछुआ हम लोग बोलते हैं लेट विंटर्स मून, जो 15 दिन के बाद जो होता है उसमें कोई चमक नहीं होती है। तो इसकी तुलना उसकी माँ से एक सिमिली के रूप में किया गया है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया, क्योंकि सी इज नॉट लुकिंग मोर ब्यूटीफुल और अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ हर डॉटर बिकॉज सी इज इन ओल्ड एज। इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है इसलिए यह बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। आने लेट विंटर्स मून, आने की पछुआ जो है तो चांद की जो चमक होती है जो कि बहुत कम होता है की तरह दिखाई पड़ता है। फैमिलियर आके माई चाइल्डहुड फियर, और जो पारिवारिक दर्द है, पारिवारिक कष्ट है, पृष्ठभूमि जो रहा है, इनको यादें तरोताज़ा हो जाती है और इनको डर भी लगता है लेखिका को। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन सारी दिमाग में क्या है, ममत्व भरा हुआ, माँ के बारे में सोच रही है, बचपना खोया हुआ बचपना याद कर रही है, एक साथ बिताए गए पल को याद कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि हम में जो है नकारात्मक ना हो, बल्कि सैडनेस नहीं हो, बल्कि हैप्पी मूड में हो। इसलिए बताती है सी यू सून अम्मा, पुनः मिलते हैं अम्मा, बहुत जल्द आपसे भेंट करते हैं अम्मा। अम्मा मीन्स माँ। देखेंगे आपका साउथ इंडिया में हम लोग मदर बोलते हैं माँ, उधर क्या है अम्मा बोलता है, अम्मा मीन्स मदर। तो ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अपने गंतव्य की ओर जाने से पहले, आने के एरोप्लेन पे सवार होने से पहले, उस जगह को छोड़ने से पहले वो अपने चेहरे पर मुस्कान मुस्कान और मुस्कान लाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पोयम डेडिकेटेड टू ए मदर बाय ए डॉटर। एक बेटी के द्वारा माँ को समर्पित एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से लिखा गया है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि मदर है तभी एक डॉटर है। डॉटर की परिकल्पना तभी हो सकती है जब एक माँ हो, और उसके साथ हमारा क्या है, एक सिंपैथी होता है जिसको हम लोग मदरहुड भी बोलते हैं। और इसमें क्या दिखाया गया है, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटी, और क्या दिखाया गया है आपको, ह्यूमन टच को दिखाया गया है, मानवीय संवेदना, ह्यूमन टच को। दैट्स व्हाई दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएम for class 12 and this is the first poem. I hope all students belong to class 12 will learn again and will try to know each and one line of the given poem for better understanding and objective questions also, so that they can ensure good marks in the exam. See you again. Thank you.